Now, the probe into the Mira Road knife attack is taking a serious turn. During a search of the accused's residence, police recovered handwritten notes in which he allegedly expressed a desire to join ISIS. Sources say the accused described the attack as a first step towards associating with a terror organization. Investigations have revealed that the accused, identified as Ansari, is a science graduate who had lived in the US for several years before returning to India after failing to secure employment. He reportedly lived alone in Mira Road and was working as an online chemistry tutor. Agencies believe that during this period of isolation, he may have been radicalized through online content. Meanwhile, search operations are going on, and on the screens are fresh visuals of the incident that have just emerged. ATS teams are conducting multiple raids at multiple locations in Mira Road and other premises linked to the accused in what's been described as a lone wolf attack. This 31-year-old man was arrested for trying to stab two security guards in Mumbai. The man approached the two security guards and asked them to recite the kalma, after which he stabbed them. The victims, Rajkumar Mishra and Shubhrato Ramesh Sen, were working as the security guards at a construction site located beyond the Wockhardt Hospital near Arista Grand Mansion in Naya Nagar of Mira Road East. Both guards sustained severe injuries in the assault. According to sources, the accused reportedly first asked the security guard about his caste and religion and then demanded that he recite the kalma. When the guard refused, the accused attacked him with a knife. Based on the CCTV images from the area and local intelligence, the police identified the accused as Jaib Zubair Ansari and, following a search operation, took him into custody within a mere 1.5 hours. Maharashtra's Chief Minister Devendra Fadnavis has said that this is a case of self-radicalization. He informed that the case is currently being investigated by the Anti-Terrorism Squad, or ATS, and the National Investigation Agency, or NIA, and the state government is providing full cooperation to these agencies. मोठ्या प्रमाणात पुस्तकं, साहित्य, इंटरनेट या माध्यमातून रॅडिकलायझेशनचा जो प्रयत्न आहे त्या प्रयत्नातनं हा जो व्यक्ती आहे, आरोपी आहे, हा तयार झालेला दिसतोय. त्यामुळे याला केवळ काहीतरी आपल्याला जिहाद करायचा आहे आणि जिहाद करायचा म्हणजे इतर धर्मियांना मारायचं आहे अशा पद्धतीच्या विचाराने पेटून त्यांनी हे कार्य केलेलं आहे. त्याला पकडलेलं आहे. आता एटीएस आणि एनआयची मदत घेऊन या रॅडिकलायझेशनच्या पाठीमागे कोण कोण आहे हे देखील या ठिकाणी शोधण्यात येईल. याचं कुटुंब हे परदेशात आहे, ते अमेरिकेमध्ये आहे. हाही अनेक वर्ष परदेशात राहिलेला आहे. त्यानंतर इथे आल्यानंतर पहिल्यांदा कुर्ल्यामध्ये आणि त्याच्यानंतर नवानगरला तो राहायला आला. त्यामुळे आता याच्या पाठीमागे कोण कोण आहेत, याच्या लिंकमध्ये कोण कोण आहेत, अजून कोणी असे रॅडिकलाइज झाले आहेत का, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आता तपासामध्ये पुढे येतील. And now we have my colleague Jaiprakash Singh joining us on the phone line with the latest. Jaiprakash जी, बताइए पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, कहां तक पहुंची है इन्वेस्टिगेशन? देखिए, इस पूरे मामले में महाराष्ट्र एटीएस जांच कर रही है और महाराष्ट्र एटीएस की अब तक की जांच में ये आया है कि जो जैब जुबैर अंसारी है, इसके घर पर यानी कि कमरा नंबर 304 थर्ड फ्लोर अस्मिता रेजेंसी नाम की जो बिल्डिंग है, उसके अंदर कई आपत्तिजनक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिले हैं. पेन ड्राइव मिला है, इसके अलावा लैपटॉप और 2 मोबाइल मिला है. इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में आईएसआईएस से जो विचारधारा को प्रभावित करने वाले सामग्री हैं वो है. इसके अलावा गाजा लिखी हुई कुछ पुस्तकें हैं, कुछ और सामग्री हैं. ये तमाम सामग्रियां ये क्यों रखता था, तो इसे लेकर एटीएस और एनआईए भी अब इस जांच में जुट रही है, क्योंकि ये लोन वुल्फ का मामला है. लोन वुल्फ का मामला यानी कि किसी विचारधारा से प्रभावित होकर आप खुद ही आतंकी साजिश रचने की शुरुआत करते हैं. आतंकी साजिश रचने के लिए आप साजो सामान तैयार करते हैं. जैसे रात को 27 तारीख की रात को 3 बजे जब ये दोनों सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचा जैब, तो उसने मस्जिद का पता पूछा. मस्जिद का पता जब नहीं बता पाए दोनों सिक्योरिटी गार्ड, खास करके जो उड़ीसा के सिक्योरिटी गार्ड थे, जब वो नहीं बता पाए तो उनसे उन्होंने पूछा कि आप हिंदू हो,
जब उन्होंने कहा मैं हिंदू हूं तो वो वहां से चला गया जैब, और बगल में 50 मीटर की दूरी पे महज उसकी अपनी जो इमारत है जहां पर वो किराए पर रहता था, वहां जाकर उसने चाकू ली और चाकू लेकर दोबारा वहां पर गया उसे ढूंढने के लिए। और जब वो वहां पर नहीं मिला तो बगल में रसाज मॉल है, सिनेमा हॉल है, वहां पर अगल बगल में बहुत सारी चाय की और जो है फेरी वालों की दुकानें हैं, वहां पर उसे वो सिक्योरिटी गार्ड मिला, तो वहां पर उसने उसके ऊपर अटैक किया और उसके बाद उसका पीछा किया। और जब वो सिक्योरिटी गार्ड की केबिन में, जो मैनेजर की केबिन होती है सुपरवाइजर की, वहां पर वो छुपने के लिए गया, तो वहां जो राजकुमार मिश्रा दूसरे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको उसने अटैक किया। तो आप समझ सकते हैं कि बिना किसी कारण के, सिर्फ हिंदू होने के कारण इसने उन पर अटैक किया है, जो अब तक की तफ्तीश में बात सामने आई है। हालांकि पुलिस इसमें अभी तक कोई बयान या बाइट नहीं दे रही है, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा है, देवेंद्र फडणवीस जी ने, कि ये रेडिकलाइजेशन का मामला है, सेल्फ रेडिकलाइजेशन का मामला है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए ये आईएस की विचारधारा से प्रभावित हुआ और आईएस की विचारधारा से प्रभावित होकर इसने खुद ही आतंकी साजिश रचने की शुरुआत की। लेकिन अब ये इसकी आतंकी साजिश जो है क्या थी? क्या वो मुंबई में अटैक करने की योजना बना रहा था या फिर वो क्या योजना बना रहा था? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं खुद इमारत के अंदर गया था और इमारत के अंदर जहां ये रहता है वहां पर लोगों से मैंने बातचीत की, सोसाइटी से बातचीत की, सबने ये कहा कि ये किसी से बात नहीं करता था। यहाँ तक कि जो साफ सफाई वाले हैं उनको भी ये जो है अपना कूड़ा देने के लिए मना करता था, कूड़ा लेने के लिए मना करता था। 2 या 3, 4 दिन के बाद ये अपने घर का कूड़ा जो है उनको देता था। तो आप समझ सकते हैं कि ये एकदम आइसोलेटेड था, एकदम अकेला था ये, और अकेले में ये बहुत सारी योजनाएं बना रहा था। जयप्रकाश जी, लेकिन अभी तक का जो जितना भी कहा जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से कि ये एक लोन वुल्फ अटैक है और एंटी टेरर स्क्वाड जो एटी जो है जांच कर रही है, लेकिन ये लग नहीं रहा है कि ये जो अंसारी है ये किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं, बिल्कुल अब तक ये बात सामने नहीं आई है कि ये किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ या टेरर आउटफिट के साथ जुड़ा है या इसका कोई मेंटोर है या इसका कोई हैंडलर है विदेश में। ये सारी बातें अब तक नहीं आई है। लोन वुल्फ जो है वो एक तरीके का एक विचारधारा से प्रभावित होकर कोई युवक जो है, जैसे हमने मुंब्रा में देखा, कल्याण में देखा, इसके अलावा भिवंडी में कुछ जो लड़के थे वो आईएस की विचारधारा से प्रभावित हो गए थे, बाद में उन्हें एटीएस ने गिरफ्तार किया था। तो ये एक तरीके का इस तरह से है कि इंटरनेट पर आजकल सारी सामग्री मौजूद है। इसके दरवाजे पर मैं आपको बताऊं कि इसने अपने दरवाजे पर ये लिखा हुआ था कि कुरान की कुछ आयतें हैं उसे आप पढ़ें, बिस्मिल्लाह करें, उसके बाद 3 बार सलाम करें और उसके बाद आप मेरे घर में एंट्री करें। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आयतें और ये सारी चीजें हैं, ये गैर मुस्लिम तो इसे पढ़ नहीं सकते, तो निश्चित तौर पे इसके घर में गैर मुस्लिम की एंट्री भी नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये अकेले ही रहता था, अकेले सारी योजनाएं बना रहा था और ये 2 सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करना, ये छोटी घटना को अंजाम देना, इसे मालूम था कि इस छोटी घटना को अंजाम देने के बाद ये गिरफ्तार होगा। तो इसके पीछे की क्या वजह थी ये समझना भी बहुत जरूरी है। एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। Jaiprakash Singh there joining us with the latest on that story from Mumbai. Thank you, Jaiprakash, for bringing us that update.